Good morning, everyone. What did we discuss in the previous class? Do you remember what we discussed in the previous class, Drishti? क्या डिस्कस किया था? We were discussing communication. The barriers to communication. Yes, and we discussed there are four main categories. The first one is semantic barriers. Second is psychological barriers. The third one is organizational barriers. And the fourth one is personal barriers. This one we were discussing, and we had discussed two barriers under this category. The first one is fear of challenge Fear to. of challenge to authority. Yes. And second one is Lack of confidence in subordinates. these two we had discussed. Yes, sir. So now let's continue from here onwards. The third barrier under this category is unwillingness to communicate. Sometimes what happens, two employees may not be at talking terms. They do not have good interpersonal relations. Maybe they had a conflict, or because of any other reason, they just don't want to communicate with each other. Now, in such a situation, communication becomes ineffective. If they do not even communicate important things with each other. So, what is the way to overcome this? Even if an employee is not willing to communicate with another employee because of any reason, but at least important official information they should share with each other. That communication should not stop, right? Yes, sir. Even in our personal lives, sometimes it happens we are unhappy with a family member or with a friend, and we are not talking to that person for some time temporarily. But even during that time, we should at least communicate about important matters. Personal gossip we may not indulge in. We may not indulge in any personal or social communication, but important communication should always be flowing. It should not stop, right? Yes, sir. Next is lack of proper incentives. Suppose in an organization, whenever subordinates give any suggestion, their suggestions are ignored. They are not appreciated. They are not implemented. So there is no incentive to give suggestions, to give feedback. In such a situation, the employees may become frustrated and they may stop giving suggestions at all. So that comes under lack of proper incentives. Clear? Yes, sir. And that is why we say that suggestions, feedback of all the employees should be encouraged at all the times. Under which management principle did we say this? Incentive? Management principle of fuel. Don't remember. Initiative. Don't remember. Initiative. इनिशिएटिव में कहते हैं ना कि सजेशंस को एनकरेज करना चाहिए. Okay, next heading is now improving Yes, sir. communication effectiveness. Once we have understood what are the different types of communication barriers, now we will discuss how to overcome those barriers and make our communication effective. First point is clarify ideas before communication. If you are not very sure what and how you want to communicate, then don't start communicating immediately. Take some time, think about it, jot down the main points. What do you want to convey? How do you want to convey it? So clarify the ideas in your mind first. अगर आपके अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपने क्या कम्युनिकेट करना है, तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. सो क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, सो दैट कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट भी ना हो जाए कम्युनिकेशन में आपके, और अननेसेसरी चीज कोई
टाइम वेस्ट भी ना करे कम्युनिकेशन में. क्लियर? Yes, sir. Second is communicate according to needs of receiver. हमें कम्युनिकेशन करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी नीड्स क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास 1 के बच्चों को ये कम्युनिकेशन का टॉपिक ऐसे पढ़ाने लग जाऊं जैसे आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. They will not be able to understand most of it. On the other hand, अगर मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, आप लोगों को इस तरह से कराऊं ये टॉपिक, जस्ट अ सेकंड. ओके, लेट्स कंटिन्यू. हाँ, सो अगर मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाना शुरू करूं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन. राइट डाउन COM. तो आप लोगों के लिए तो कितना बोरिंग और कितना स्लो हो जाएगा. सो वी शुड कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रिसीवर. अगर सामने वाला थोड़ी जल्दी में है तो सेम बात को हम शॉर्ट करके भी समझा सकते हैं, और अगर सामने वाला डिटेल में सुनना चाहता है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है, देन वी कैन कम्युनिकेट इन डिटेल. Clear? Yes, sir. Third one is consult others before communicating. अगर आपको डाउट है कि क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, क्लैरिटी नहीं आ रही खुद से, then instead of communicating a wrong message or in a wrong manner, it is always better to consult others. आपको कोई एक दो लोग ऐसे आपकी नॉलेज में हैं जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं उस टॉपिक पे कि क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनकी हेल्प ले लो इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग इन अ रॉन्ग मैनर. नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लैंग्वेज ऑब्वियसली आपकी डिसेंट होनी चाहिए और आपका उस लैंग्वेज में अच्छा कमांड होना चाहिए जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है. टोन, कई बार टोन पूरे एक मैसेज को स्पॉइल कर सकती है, कम्युनिकेशन को स्पॉइल भी कर सकती है और बहुत अच्छा भी बना सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को कहा कि एक गिलास पानी ला दो प्लीज. ठीक है, उसी को आपने अगर इस टोन में कहा एक गिलास पानी ला दे, नाउ मैसेज इज सेम, wordings are almost similar, but the tone is entirely different. Getting it? Yes, sir. तो फर्स्ट केस में तो हो सकता है आपको पानी मिल जाए, सेकंड केस में बहुत मुश्किल है कि आपको मिलेगा. उल्टा कुछ उसी टोन में आपको सुनने को मिल जाएगा, है ना. Yes, sir. तो टोन का भी ध्यान रखना है. उसके बाद है कंटेंट. कंटेंट हमारा एज आई सेड डिसेंट होना चाहिए, कहीं कुछ उसमें ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए. वर्ड्स हमें बहुत ध्यान से चूज करने चाहिए, कहीं कोई ऐसे वर्ड्स ना हो जो सामने वालों को हर्ट करें या ऑफेंसिव लगे. देन नेक्स्ट इज कन्वे वैल्यूएबल मैसेज. कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास कुछ काम की बात नहीं भी है बोलने को तो कुछ भी बोलते रहेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए. वो कम्युनिकेशन को बहुत इनफेक्टिव बना देता है. ऐसे लोग कभी कोई काम की बात भी करें ना तो कोई ज्यादा उस पर सीरियसली लेता नहीं है उनकी बात को. सो वी शुड कन्वे वैल्यूएबल मैसेज. जब हमारे पास कोई काम की बात, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तभी हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए. और वो काम की बात भी हमें इंटरेस्टिंग मैनर में बतानी चाहिए. और किसी चीज को इंटरेस्टिंग वे में समझाने का बेस्ट तरीका होता है आइदर टेक रियल लाइफ एग्जांपल, और if you are not able to think of a real life example related with it, then use some story related with it. Clear? Yes, sir.
Ensure proper feedback, very important. We discussed it earlier also. Without feedback, communication is incomplete. Then communication for both present and future. अभी जो आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है एम्प्लॉइज को आज के लिए, वो तो दो ही, साथ के साथ नेक्स्ट फ्यू डेज में कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम होने हैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन भी थोड़ा पहले से दे दो, सो दैट दे गेट सफिशिएंट टाइम टू थिंक अबाउट इट, टू प्रिपेयर फॉर इट. ठीक है, अगर आप सारी इंस्ट्रक्शंस एकदम से ही दोगे तो एम्प्लॉइज को सफिशिएंट टाइम शायद नहीं मिल पाएगा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. क्लियर? Yes, sir. देन फॉलो अप. इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप ऐसा नहीं है कि रिलैक्स होके बैठ जाओगे, ठीक है मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी अब एम्प्लॉइज काम कर लेंगे, सबऑर्डिनेट्स काम करते रहेंगे. नो, यू हैव टू check on a regular basis whether the instructions are being followed properly or not. So regular follow up is required. And last but the most important, be a good listener. कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुनना और समझना. ठीक है, हियरिंग और लिसनिंग में भी डिफरेंस है. हियरिंग इज जस्ट हियरिंग, लिसनिंग इज हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर समझना भी. ठीक है, तो अपनी बात हर कोई कहता रहेगा तो कोई किसी की बात समझेगा नहीं, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, you when someone is speaking, first listen to that person carefully and try to understand. बहुत सा आपका कम्युनिकेशन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की अगर आप सामने वाले को ध्यान से सुन लोगे. क्लियर? Sir. So be a good listener. Now let us summarize whatever we have discussed about barriers and overcoming them. Semantic barriers. First is badly expressed message, how to overcome. Be aware of the language. Clarify ideas before communication. Consult others before communicating. Then different meanings of symbols. Ensure proper feedback. फीडबैक से इंश्योर कर लो कि जिस मीनिंग में आपने वो वर्ड यूज किया था उसी मीनिंग में समझाया ना सामने वाले ने. फॉल्टी ट्रांसलेशंस. बी अवेयर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस. यूज अ गुड ट्रांसलेटर. कंसल्ट और इन्वॉल्व मोर देन वन ट्रांसलेटर. एक हो सकता है ट्रांसलेटर कुछ मिस्टेक कर दे तो एक से ज्यादा ट्रांसलेटर हो सके तो इन्वॉल्व करने चाहिए, जहां पर ट्रांसलेटर की हम यूज कर रहे हैं, जहां पे दोनों सेंडर और रिसीवर को कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं आती है. अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस. क्लैरिफाई द एजम्पशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग. एंश्योर प्रॉपर फीडबैक. डू अ फॉलो अप. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जिन एजम्पशन से आपने कम्युनिकेट किया है उन्हीं एजम्पशन से रिसीवर ने मैसेज को समझा है. टेक्निकल jargon. Communicate according to needs of receiver. मतलब avoid technical terms in front of those people who are not expected to know those terms. Then comes body language and gesture decoding. When body language and gestures mismatch. So clarify ideas before communication. सोच समझ के आप gestures use करो, सही gestures use करो. And the receiver should ask for clarification in case of any doubt. Suppose किसी ने लेफ्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कह दिया है गो टू राइट, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में डाउट आ गया, तो आप क्लैरिफाई कर लो कि आप इशारा लेफ्ट का कर रहे हो, बोल रहे हो राइट, तो किसको फॉलो करना है, किस तरफ जाना है. क्लियर? Yes, sir. Second category barriers we discussed were psychological barriers. प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की मैसेज अभी पूरा भी नहीं हुआ, आपने पहले ही जज कर लिया क्या मैसेज होगा और रिस्पॉन्ड कर दिया या रिएक्ट कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए. बी अ गुड लिसनर एंड हियर द कंप्लीट मैसेज बिफोर रिस्पॉन्डिंग. लैक ऑफ अटेंशन. बी ए गुड अटेंटिव लिसनर. लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. जब बहुत लोगों के थ्रू मैसेज पास ऑन होते होते डिस्टॉर्ट हो जाता है. Ensure proper feedback. Follow up.
इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन शुड बी इन राइटिंग. राइटिंग में जब होगा तो उसमें लॉस ऑफ ट्रांसमिशन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट कम्युनिकेशन. डिस्ट्रस्ट, कन्वे वैल्यूएबल मैसेज. अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए. जब हमारे पास कोई वैल्यूएबल बात हो तभी हम कम्युनिकेशन करें. should not lie, should not spread rumors, so that credibility is maintained and people listen to our communication and they take our communication seriously whenever we communicate. Clear? Yes, sir. Third category is Organizational barriers. yes, organizational barriers. इसमें पहला था organization policy. Ensure proper feedback, follow up, communicate for both present and future, allow free communication flow as long as it does not create disturbance. Second is rules and regulations. Keep rules and regulations simple. Avoid unnecessary rules and regulations. Third one was status. When the superior is very egoistic and does not feel like communicating with the subordinates freely. Communicate freely and frankly with subordinates without any ego. Complex organization structures, जहां पर बहुत लंबी स्केलर चेन्स हैं, तो ensure proper feedback, follow up, simplify the communication channels as far as possible. Then organizational facilities. Ensure proper feedback, follow up through suggestion and feedback system in ERP and company website. तो ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, फीडबैक की, सजेशन की. क्लियर? Yes, sir. Fourth category we discussed was personal barriers. Under this category, first barrier we discussed was fear of challenge to authority, insecure manager, where the manager or the superior feels that if I will communicate freely with the subordinates, they will start challenging my authority. So the solution is communicate freely and frankly, politely and firmly with subordinates without any fear. अगर कोई सबॉर्डिनेट आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है तो उससे आप फर्मली डील करो, लेकिन शुरू से सबके साथ आप कम्युनिकेशन गैप बना के मत चलो. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन सबॉर्डिनेट्स, तो इसे ओवरकम कैसे करना है? हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन योर सबॉर्डिनेट्स. सम सबॉर्डिनेट्स sometimes they may give very wise suggestions. Next is unwillingness to communicate. Convey valuable message so that people feel willing to communicate. अगर आप बेकार की बातें ज्यादा करते रहोगे तो लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे. अगर आप काम की बात करते हो जनरली तो मोस्टली लोग आपके कम्युनिकेशन को ध्यान से सुनना पसंद करेंगे. Must not hesitate in important communication. Keep language, tone and content friendly and polite so that employees are encouraged to discuss anything freely without any hesitation. Clear? Yes, sir. When lack of proper incentives, तो incentives दे दो. क्या incentives देने हैं? Appreciate the suggestions publicly. Implement the good suggestions. Clear? Yes, sir. Any doubt in any of these topics? No? Okay. So this chapter of directing is complete now. You will do all the questions of this chapter now. Okay. And now we move on to the next chapter, which is कौन सा फंक्शन बचा है अब मैनेजमेंट का? Yes. Controlling. आपने कई बार ये सुना होगा, हर बात की कोई हद होती है. देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग. सुना है? Yes, sir. डू यू एग्री विद दिस? होनी चाहिए हर चीज की लिमिट या नहीं? Yes, sir. होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए?
Excess of everything is not good. Yes, because excess of anything is bad. So limits should be there. For most of the things, limits should be there. If we go beyond those limits, things are said to be out of control. So control means ensuring that the accepted limits are not crossed. So what is controlling? Controlling is the measuring and whenever required correcting of the activities to ensure that activities conform to plans. मतलब जहां जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसे देखते रहना परफॉर्मेंस कैसी है और मैच करते रहना प्लान जो हमने बनाए थे उससे. तो अगर प्लान्स के अकॉर्डिंगली ही चल रही है देन एवरीथिंग इज फाइन. बट इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के हिसाब से नहीं चल रही, ज्यादा डेविएट हो रही है, तो फिर करेक्टिव एक्शंस लेना जिससे कि वापस सही ट्रैक पे एज पर दी प्लान्स हमारी परफॉर्मेंस आ जाए. क्लियर? Yes, sir. So now we will discuss the process of controlling. The steps in the process of control. First step is establishment of standards. जब तक कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होंगे तो हम परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करेंगे? हम नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस अच्छी है या पुअर है, एज पर प्लान्स है या नहीं है, जब तक कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे. ठीक है? इट इज जस्ट लाइक जब तक रोड पर लेन्स डिवाइडेड ही नहीं है, ड्रॉन ही नहीं है या बीच में डिवाइडर ही नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस के लिए किसी को भी कहना कि आप अपनी लेन में नहीं हो. वो कहेगा लेन है कहां? लेन तो कहीं दिख ही नहीं रही. सो टू कंट्रोल ट्रैफिक, lanes should be drawn on the road. The divider should be there on the road. Something needs to be there which tells that this is the standard within which you have to remain. Okay, so first step is establishment of standards, and this step starts in the process of planning. So in a way, controlling also starts along with planning. So standards are to be set up with which the actual results will be compared, evaluated. And standards हमने ये प्लानिंग डिस्कस करते हुए भी डिस्कस किया था. ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए. तो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं, स्टैंडर्ड्स शुड बी स्मार्ट. SMART, स्मार्ट का यहाँ पे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? As for specific and simple, the objectives or standards should be clear. They should not be vague. Suppose हम प्रोडक्शन टारगेट सेट कर रहे हैं तो ये नहीं हम कहें कि भाई प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आप बताओ ना कितनी बढ़ानी है, 10%, 5%. It should be specific. Then measurable. Measurable मतलब जहां तक हो सके क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए. ठीक है? अगर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन का टारगेट है बढ़ाने का, तो कितना बढ़ाने का? कि हमारी प्रोडक्शन अभी लेट अस से 500 यूनिट्स है, तो अब नेक्स्ट मंथ से हमारा टारगेट है 550 यूनिट्स. तो ये मेजरेबल हो गया एकदम क्वांटिटेटिव टर्म्स में. क्लियर? Yes, sir. Then A for attainable. स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो अटेन हो सके, अचीव हो सके. ठीक है? इसे हम अचीवेबल भी कह सकते हैं. इतने हाई स्टैंडर्ड्स ना हम सेट कर दें कि जिन्हें अचीव करना ही मुश्किल है और ज्यादातर एम्प्लॉइज फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि भाई हम अचीव ही नहीं कर पाते इस टारगेट को, स्टैंडर्ड को. तो इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि सब बहुत इजीली अचीव हो जाए और फिर वर्कर्स खाली बैठे रहें. इतना हाई भी नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड कि उसे अचीव करना ही मुश्किल हो ज्यादातर के लिए. So it should be achievable with reasonable efforts. R for relevant. Standards useful होने चाहिए, consistent होने चाहिए with the overall objectives of the organization. And T से time, time bound. जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसके साथ हमें टाइम फ्रेम जरूर सेट करना चाहिए. ठीक है?
आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो कितनी देर में कंप्लीट करना है? 1 घंटे में, 2 घंटे में, दैट टाइम फ्रेम वी शुड सेट। अदरवाइज क्या होता है, जब टाइम फ्रेम सेट नहीं करते तो कुछ लोग जो बहुत सिंसियर हैं वो तो जल्दी से काम टाइमली कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद पे सेल्फ कंट्रोल कम है और उन्हें अगर टाइम लिमिट ना दी जाए कि कितने टाइम में खत्म करना है तो वो उसे लिंगर ऑन करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और फिर वो काम पेंडिंग होते जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. After establishing the standards, when the actual performance begins, then second step is measurement of performance. Performance should be measured in an objective and reliable manner. ठीक है, ऑब्जेक्टिवली हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, सब्जेक्टिवली नहीं, पार्शियल नहीं होना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए, इन द सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अगर स्टैंडर्ड्स किलोग्राम्स में है तो मेजरमेंट भी किलोग्राम्स में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स अगर लीटर्स में है तो मेजरमेंट भी लीटर्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सपोज मिल्क पैक प्रोसेसिंग का काम है आपका, आपने स्टैंडर्ड रखा लीटर्स में कि इतने लीटर्स मिल्क डेली प्रोसेस करना है, और मेजर करते हुए आप केजीज में मेजर कर रहे हो उसे, तो वो ठीक नहीं होगा। जिन यूनिट्स में स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं, द परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स। क्लियर? Yes, sir. There are several techniques of measuring performance, like personal observation, sample checking, etc. These can be used to measure the performance. After measuring the performance, we should compare it with the standards. जो स्टैंडर्ड सेटअप हुए थे फिर उनके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, और कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि जो स्टैंडर्ड सेट था एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उतनी ही है या उससे डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, एनालाइजिंग द डेविएशंस। डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। सपोज स्टैंडर्ड आपने सेट किया 100 यूनिट्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 100 यूनिट्स, सो देयर इज नो डेविएशन। एक्चुअल परफॉर्मेंस 99 यूनिट्स, तो -1 हो गई डेविएशन। एक्चुअल परफॉर्मेंस 102 यूनिट्स, +2 हो गई डेविएशन। गेटिंग इट? Sir. So we need to analyze the deviations. अब डेविएशंस पे हमें सब डेविएशंस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं 100 यूनिट, सपोज हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि 100 यूनिट्स एवरी वर्कर हैज टू प्रोड्यूस एवरी डे, तो उसके साथ साथ हम एक्सेप्टेबल लिमिट्स भी सेट करते हैं, क्योंकि हम मशीन से काम नहीं करवा रहे, ह्यूमन फैक्टर इज देयर। तो 100 यूनिट्स हम कहते हैं लेट अस से +-10। +-10 का मतलब लिमिट्स हमने सेट कर दी कि 100 हमारा टारगेट है, लेकिन 90 भी चलेगा, 90 से 100 के बीच में भी एक्सेप्टेबल है, और 100 से 110 के बीच में भी एक्सेप्टेबल है। +-10 का ये मतलब हुआ। तो जहां एक्सेप्टेबल लिमिट में है डेविएशन, उसे हमने इग्नोर करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। और क्यों जरूरी है ये एक्सेप्टेबल लिमिट? बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कोई मशीन नहीं है कि एग्जैक्ट जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया है सब एग्जैक्ट उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। और अगर हम एक एक यूनिट के लिए उन्हें टोकना शुरू कर देंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे, then employees will get very frustrated. So there should be some limit within which we will accept. और छोटी छोटी डेविएशंस को अगर हम कंट्रोल करने पे आ जाते हैं तो कई बार बड़ी डेविएशंस पे ध्यान ही नहीं जाता। सपोज ट्रैफिक पुलिसमैन इतना माइनर भी कोई अपनी लेन से जरा सा लेफ्ट राइट हुआ उसको देखते रहे, किसी की स्पीड लिमिट सपोज 50 है, 50 से 51 भी हुई उसे रोकते रहे, तो इतने में वो ये सब करने में बिजी होंगे, कोई सिग्नल ही जंप करके चला जाएगा, इतनी मेजर डेविएशन हो जाएगी। सो माइनर डेविएशन शुड बी इग्नोर्ड। उससे
सुपीरियर्स या कंट्रोल करने वालों की भी एनर्जी, एफर्ट और टाइम बचेगा, और सबऑर्डिनेट्स भी अननेसेसरली फ्रस्ट्रेट या हरेस नहीं होंगे। हाँ, जहां पर सिग्निफिकेंट डेविएशंस हैं, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर कोई डेविएशन है, देन some corrective action needs to be taken. Clear? Yes, sir. Is this much clear? Yes, sir. Okay. Now there are two techniques used for analyzing deviations. One is critical point control. According to this, इसको CPC कहते हैं short में, critical point control. According to this technique, control should focus on key result areas. ठीक है? Suppose you are manufacturing cars. तो cars में किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है? Safety, comfort, looks, space, cost, fuel efficiency. ठीक है? अब इनमें से आपने डिसाइड किया कि सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी दो एरियाज हैं जिन पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे या बहुत कम डेविएशन एक्सेप्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके की रिजल्ट एरियाज। बाकी कंफर्ट, लुक, स्पेस में थोड़ी ज्यादा डेविएशन भी चल जाएगी। ठीक है, सो using this technique we identify what are the key result areas on which we want to focus more, in which we will accept no deviation or very less deviation. Clear? Yes, sir. क्योंकि Yes, अगर sir. आप कोशिश करोगी सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो, लुक्स भी, कंफर्ट भी, कॉस्ट भी, फ्यूल एफिशिएंसी भी, सेफ्टी भी, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. So it is better to identify 2 or 3 key result areas and focus on them more. Second is management by exception or control by exception. Now this technique talks of the same thing which I was telling you, that if deviations are negligible and well within the limits, much effort should not be wasted in trying correcting them. छोटी मोटी मिस्टेक्स को, छोटी मोटी डेविएशंस को इग्नोर कर देना चाहिए, किसी से भी हो सकती है कभी भी. बट डेविएशंस विच आर सिग्निफिकेंट एनफ should be considered for taking remedial action, corrective action. Clear? Yes, sir. इसे ऐसे भी कहा जाता है, Yes, sir. yes, इसको ऐसे भी कहा जाता है that if you try to control everything, you end up controlling nothing. So don't try to control everything. Just focus on the main things. And if there is significant deviation, only then you need to step in to take some corrective action. Clear? Yes, sir. Once we have identified the significant deviations, if there are any, then first thing, what should we do? We should find the cause and take the steps Yes, to correct it. absolutely right. Corrective action लेने से पहले हमें deviation का cause पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक क्योर कैसे होगा? अगर जितने भी पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं विद कंप्लेंट ऑफ फीवर, सबको डॉक्टर सेम मेडिसिन दे दे बिना डायग्नोस किए, तो वो गलत होगा, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होंगे, सबका कॉज अलग होगा, सबकी ट्रीटमेंट अलग होगी. सो सबसे पहले डायग्नोसिस जरूरी है, पता करना जरूरी है रीजन क्या है सिग्निफिकेंट डेविएशन का. उसी के बेसिस पे तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे. सपोज प्रॉब्लम ये है कि मशीन खराब है इसलिए प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है, और हम एम्प्लॉय को डांटना शुरू कर दें कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी वेरी रॉन्ग. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द अकरेंस. अगर मशीन में प्रॉब्लम है तो मशीन की रिपेयरिंग कराएंगे, अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे. तो करेक्टिव एक्शन विल डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द डेविएशन.
Clear? Yes, sir. So we stop over here for today. Anyone having any doubt can click on raise hand. No? Okay, thank you.